हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू, हाजिर है, हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। God is for us. Emmanuel, He is with us. Oh, hallelujah, God is for us. Emmanuel, He is with us. You conquered the grave, my sins now erased. Jesus, we give you praise. Your presence is here, calling us near. In your love there's no need to fear. You conquered the grave, that seems now erased. Jesus, we give you praise. Your presence is here, calling us near. In your love there's no need to fear. हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू, हाजिर है तू, हाजिर है तू। हुजूरी में रहना चाहूं, जहाँ यीशु हाजिर है। Welcome all of you. आप सबका स्वागत है. Thank you so much for joining us in the Moments of Grace. What is Moments of Grace? Moments of Grace क्या है? ये वो सेक्शन है जहां पर हम लोग वर्शिप के सेक्शन के बाद पूरे एनर्जाइज होकर के, पावरफुल होकर के, गॉड से प्रेयर करके, वर्शिप करके, we come to this section where we give testimony. We share one of the highlights of the testimony of the week. And then we hear from the word of God so that we are energized and we have fuel for the week, for the life, and for all the things that God has packed for us, because God has packed some great things for you this week. परमेश्वर ने आपको गिफ्ट रैप करके बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें इस वीक में दी है, बट दे आर डिस्गाइज्ड इन troubles or problems or challenges. So you have to
unravel it and open it, but that will be possible only when you're charged up by seeking God's face, and that you are worshipping God and you're seeking him and you're loving him, you're praising him. You're getting me? तो challenges आने वाले हैं और उस challenge के पीछे एक signature होगा test cleared and you go to the next level. जैसे इस दुनिया में हम जाते हैं, जैसे हम क्लास स्कूल में थे, पहले सेकंड में थे, हम कितना खुश होते थे, हम सेकंड में हैं, एंड में हमें बड़ी अच्छी लगती थी, देन एग्जाम होता था, इतना गुस्सा आता था किसी तरीके से एग्जाम्स खत्म हो जाए, समटाइम्स दीस एग्जाम्स शुड गेट ओवर, एंड देन वी वुड अराइव इन क्लास 3 एंड सेड वाओ, बट देन वी न्यू such a challenging class, everything was so tough, and then we always went forward till some of you did PhD. So it is the way of life. Life has been designed, and स्कूल के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, कॉलेज के भी, लेकिन लाइफ के एग्जाम्स कभी खत्म नहीं होते, एंड गॉड सेंड्स अस एग्जाम्स ऑल द टाइम, एंड एवरी टाइम ही टेस्ट्स अस आल्सो दैट दिस क्वालिटी, ये कैरेक्टर बना कि नहीं बना. सो आई वेलकम यू, आई वेलकम ईच ऑफ यू. आई cannot see all of you. Let me just try if I can see your names. Sister Anju Chadha and Kenneth Robin, brother, I welcome you. Sangeeta, I welcome you always. Aksa Batra, oh no, Aksa Batra is on a story, I think, somewhere. So yeah, this is Moments of Grace. I will just try and welcome you with names. Let me just, Sister Barkha, it's always a joy to see you. Luan, God bless you. Nikita, I welcome you. तुम्हारा कल birthday है, Nikita, please अच्छे से मनाना और हमें भी याद रखना. In whatever treat you're giving to anybody, please. Harsh, I bless you, beta, because you're such a blessing, and you have. What is special about Harsh? सबको motivate करके हिलाता रहता है. He doesn't stop. He's like me. Sister Julie, I welcome you all the way from South Africa. God bless you. And Barkha ji, I can't see any more names. Let me see why I can't see names. Anyway, I'm trying to go down. Sonia, Shabash bete, you are doing a great job in growing more and more in the Lord. And yes, I'm getting some, but I'm not able to change my screen. So somehow, please, all of you, welcome. I would have loved to welcome you, but since abhi nahi kar pa rahi hu, so my screen refuses to go the next place. But anyway, so today testimony time, but uske liye aapko wo to dikhana padega na mujhe. Slide, इतनी अच्छी slides बनाते हैं बच्चे, तो देखनी पड़ती हैं हमको, right? So ये testimony time की slide है, isn't it cute? And उसके बाद here is this lady, her name is Sister Kanta. So क्या हुआ कि लास्ट संडे की बात है, चर्च के बाद सडनली देयर वाज अ बेल एंड देयर इज दिस लेडी, ये उनकी तभी मैंने तस्वीर उतारी थी लास्ट संडे की. सो उन्होंने मुझे बोला कि आपका, उनको मेरा नाम नहीं पता, आप प्रेयर करती हो क्या? तो आई मीन वो तो सारे लोग हर हिंदुस्तान में सभी करते हैं, बट आई सेड बताइए. कहती नहीं, मुझे ना सिस्टर जी 2 मिनट आपसे बात करनी है. मुझे किसी का नाम लिया, धनवती जी ने बताया है, तो धनवती को तो हम जानते हैं. मैंने कहा अच्छा बताइए, आइए बैठिए. एंड शी स्टार्टेड टू क्राई. कहती मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बहुत बेचारा प्यारा है, और उसको ना कुछ गुंडों ने मारा, उसके पेट को फाड़ दिया और उसे जेल में डाल दिया तिहाड़ में, और मैं अपने बेटे से मिल नहीं पा रही. एंड शी क्राइड लाइक एनीथिंग. एट दैट टाइम गॉड सेड शी इज लाइंग. आई मीन नॉट दैट एवरीथिंग इज अ लाई, बट गॉड सेड शी इज लाइंग. इसके बेटे ने चोरी की, तब वो लोगों का गैंग आया, उन्होंने इसको मारा पीटा, और फिर गैंग वॉर टाइप हुई, तब उन्होंने उसे पीटा, और वो ड्रग्स में है. सो ही इज ऑल्सो डूइंग समथिंग रॉन्ग. देन शी सेड हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको कैसे पता? मैंने कहा नहीं ठीक है, वो जब आप जैसे लोग हमें पूरी कहानी नहीं बताते तो सच पता चलना होता है, गॉड बताते हैं. तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा है, सच बोलूंगी थोड़ा सा, मतलब देन शी सेड थोड़ा सा के बाद शी सेड कि आई मीन इट्स समटाइम्स वेरी फनी. देन शी सेड हाँ वो ड्रग्स लेता है और बुरी संगति में पड़ गए. और मैं, मतलब जो भी, एक माँ थी, माँ वहां पर आई थी गॉड के सामने प्रेयर करने के लिए, मुझे बचा लो. सो आई सेड ओके. पहले तो मुझे लगा कि मतलब व्हाई शी सेइंग ऑल दीस थिंग्स, बट देन हम लोगों ने घुटने टेके, प्रार्थना करी. एंड यू नो द ओनली प्रेयर आई कुड डू फॉर अ ड्रग एडिक्ट हुज इन जेल. जेल में क्यों था? क्योंकि उसने फोन चुराया था, इसलिए गैंग ने आकर के उसे मारा, उसका पेट काटा, जो भी किया, और वो उन जख्मों के साथ तिहाड़ में था. डॉक्टर्स ढंग से इलाज नहीं कर रहे थे, और वो अपने बेटे को देखना चाहती थी. सो मैंने जो भी मेरे मन में आया, मैंने प्रेयर करी, मैंने उनको ब्लेस करा. मैंने कहा देखिए, एक दूसरी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा के लोगों के पास या तो आओ मत, सामने आते तो सच बताओ, झूठ नहीं. ये कह दो कि मेरा बेटा जेल में, बस ये मत कहो कि मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं, वो तो बड़ा मासूम है. सो दैट्स अ लाई. डोंट लाई, बिकॉज आपको नहीं पता उसके रेपरकशंस क्या होंगे. सो एनीवे, रेपरकशन वर्ड मैंने वहां नहीं यूज किया था, आई डिडंट यूज दैट वर्ड. सो एनीवे, एंड आई टोल्ड हर 7 दिनों के बाद आना, क्योंकि मैंने उन्हें अपना नंबर नहीं दिया, ना उनके पास फोन था.
So she said, ठीक है, मैं 7 दिनों के बाद आपके पास आती हूँ. She went away. She came yesterday. And I thought शायद कोई और बात होगी, अपने दूसरे बेटे के लिए प्रेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि उसको वो भी ड्रग एडिक्ट है. And then she started to cry. And she says, खुदा ने मेरी इतनी मदद कर दी. I mean, she was, I said, हुआ क्या, क्या हुआ? कहती मेरा बेटा जी आपकी प्रार्थना के बाद अगले ही दिन तिहाड़ जेल से रात को 11:30 बजे. I said, what? I mean, I was sick. I said, what? He said, हाँ, आपकी प्रार्थना हुई और वो 11:30 जो impossible था, मतलब impossible नहीं बोला उन्होंने. She said it was impossible, but he was released from Tihad, and we next day got him operated, and he's absolutely fine. And she came to thank God. I mean, here is a poor person, no means, no phone, but begging to God for mercy, and God is a merciful God. You know what God sees when you want his mercy in your life? When you mess up, only a broken heart, repentant heart, a true heart. I made her repent for the fact that she was even lying. And chalo, I mean, I didn't take it seriously, but I was educating her. So जब आप टूटे हैं और आप गॉड से कहते गॉड मैंने क्या कर दिया, आई एम मर्सी, बिकॉज कुछ चीजों के लिए गॉड आपसे कभी, मतलब इट्स अगेंस्ट हिज विल, इट्स अगेंस्ट हिज लॉ. सो this lady prayed and God gave us a wonderful testimony. Aren't you excited? I mean, I just pray कि जितने लोगों के बच्चे ड्रग्स में हैं, अल्कोहल में हैं, या वो तंबाकू खाते हैं या इस तरह की चीजें खाते हैं, स्मोक करते हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आज वो एडिक्शन हटेगा. क्यों वो डिजायर है स्मोक करने की, क्यों वो डिजायर है तंबाकू खाने की, क्यों वो डिजायर है ड्रग्स लेने की? देयर इज समथिंग अमिस देयर. वी डोंट नीड दिस केमिकल डिपेंडेंसी. इट्स कॉल्ड केमिकल डिपेंडेंसी. हमें डिपेंड करना क्यों जरूरी है? हमारे सोल में कौन सा घाव है जो कह रहा है कि तुझे ये अल्कोहल लेने की जरूरत है? और जब तक तू इतना नहीं पी लेगा, दैट यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस. why less or more of anything that is not good for your body? So आप लोगों के लिए प्रेयर कीजिए, ने काउंसिल कीजिए. there is such beautiful things. I think a glass of water is far more delicious than a glass of alcohol. So let's just pray for such people who are chemically dependent. I pray for all of you, God. जितने लोगों के घरों में, पड़ोस में, अड़ोस में, जहां कहीं भी chemical dependence है किसी भी तरीके की, let it be broken in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, uproot it from the lives of people. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. We thank God for brother Yogesh. हमारे भाई हैं, हमारी बहन प्रतिभा के हस्बैंड है, उनकी तबीयत जो कल खराब थी ठीक हो गई है. सिस्टर प्रतिभा को आप लोग नहीं जानते, वो मेरे से कई साल पहले से मैं उनसे जानती. शी इज बेस्ड आउट ऑफ कोटा और बहुत प्यारी बहन है. शी इज सो मच इनटू प्रेयर. एंड वन डे मैं डरी हुई थी कि मेरा अमेरिका का वीजा कैसे लगा. दिस इज लॉन्ग टाइम बैक एंड आई वाज इन डाउट because my status is such that since I'm a single parent, I thought that I could be a possible candidate for, not getting a visa. So I was really sitting like this and she calls me, Didi, I had a dream. What? मेरे को ड्रीम में आया कि आपको ना अमेरिका जाने वाले. एंड आई एम सिटिंग लाइक दिस एंड शी, आप अमेरिका जाओगे ना. स्टार्टेड टू लाफ एंड लाफ. कहती क्या हुआ दीदी? मैंने कहा मैं इसी के टेंशन में बैठी थी. एंड आई सेड नाउ टुडे यू आर माय प्रॉफिट, यू आर प्रोफेसिंग ओवर माय लाइफ. एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट डे व्हेन शी कॉल्ड मी एंड शी ब्लेस्ड मी. सो शी इज अ स्वीट सिस्टर और वो हम सबके लिए प्रेयर करती हैं. जितने भी हम लोग लगातार प्रेयर कर रहे हैं, Pratibha knows those prayer points, and whenever she gets time, she will ask me, Didi, de do, or she knows and she starts to pray, and she gave me words also for people, and I really thank God for her life. फिर हम प्रेयर करेंगे. विक्की, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का विक्की के लिए. विक्की को ये कहना है कि वो लगातार sorry, there's a person I need to pray. Okay. एक प्रेयर की रिक्वेस्ट है. समथिंग अर्जेंट. फादर गॉड, इन जीसस नेम, bring peace to this person right now. Be healed in Jesus name. Relax in Jesus name. Amen. Okay, this is done. And एक सिस्टर है सुरेखा, उनके हस्बैंड, उनके पूरे फैमिली को कोविड हो गया था. शी इज healed now. I pray that she be delivered in Jesus name. और एक और प्रेयर रिक्वेस्ट आई है सोमिल की. ही इज कंफ्यूज अबाउट हिज जॉब. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बेटे को तसल्ली मिलेगी. हम प्रार्थना करते हैं आश्रिया के लिए. वाओ वाओ, आपको पता है हम लोग बहुत दिनों से आश्रिया के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि उसको जेएमसी में कट ऑफ में मिल जाए. तो उसकी मम्मी का अभी भी मैसेज आया है दैट शी हैज गॉट इट. शी हैज गॉट इन जेएमसी सोशियोलॉजी ऑनर्स और उसका बहुत मुश्किल था. गॉड इज ग्रेट. प्लीज सिस्टर,
treat. अगर आप हमें तो नहीं भेज सकती, all the way from Dwarka, this prayer request came, so please treat whoever is around you. But we are so happy for Ashriya. God bless you, my daughter. Do well and shine. Okay, Mohit, I'll pray for you, and God will help you hear from God in this area. But I can't read your chat, so please don't type right now anymore. But the last, I was just looking at this little thing. Okay, so these are all the prayers that we had, but I was wanting to move forward. So let's get into the Word of God. I have a Word of God which is a little scattered here and there, and आप हमारी presentation देख रहे होंगे कि उस पे कुछ पौधा सा दिख रहा है. So let me just show it to you again. Let me go to the next slide. Yeah. I'm just getting my slide. You know, sometimes वो गायब ही हो जाती है and I just don't know what to do. I'm just still learning to toggle between Zoom and Dhoom. So just a moment, please. It's always one story. Okay. So I think I'm not able to show you. I'll try because it's such a beautiful slide. दिखाना तो बनता है. So let me try. So if you see this slide, you'll see कि मिट्टी है और एक छोटा सा प्लांट है, उस प्लांट को लगाना है. बट आज की बात जो मेन स्क्रिप्चर है वो ये है कि अगर लेट्स कंसिडर दैट हम लोग एक बीज हैं और हमें बोया जा रहा है, तो फिर एक जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, हम ग्राउंड के अंदर होते हैं. विल कम टू दैट कॉम्प्लिकेटेड स्टफ अ बिट लेटर, बट लेट मी जस्ट स्टार्ट विद अ फ्यू थिंग्स. आपने कहानियां सुनी है रैग्स टू रिचेस? डू यू नो द टर्म रैग्स टू रिचेस? Some of you do, right? Do you know the term riches to rags? It happens a lot in the society. बहुत सारी होती हैं. So let's just pray for rags to riches, riches to rags, and we'll come to the message. God, speak to our hearts, encourage us today. Let your word go deep inside of us and strengthen us. Prepare us for the next week and the years ahead with this word. In Jesus' name, amen. अगर हम रैग्स टू रिचेस की बात करें तो धीरू भाई अंबानी जी रैग्स में नहीं थे, बट ही वाज फ्रॉम अ स्मॉल, उनके पापा मास्टर जी थे, खाने पीने को था. बट टुडे हिज सन, जो भी धीरू भाई अंबानी जी ने किया है, he has been able to sow the seeds that his son is going to be the richest man of the world in the next few years. I mean, Mr. Ambani. हमने ये भी सुना है मिस्टर ओम प्रकाश जिंदन फ्रॉम विलेज नावला फ्रॉम हरियाणा. I just saw a video of his on NDTV 2006, and he became a rich man. So we know some people who were not. I mean, I don't think Mr. Om Prakash Jindal was really in rags, but they were not so. They didn't have so many means, but today they are a big name, Jindal. Now, what about rags to riches? मतलब रिच है, बहुत पैसा है, लेकिन फटे हाल हो गए. तो पंजाब के अमिताभ बच्चन एक बंदे थे, उनका नाम था, एक एक्टर है सतीश कौल, करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन एंड में वो फटे हाल हो गए. मे बी सम बैड चॉइसेस. यू मस्ट हैव ऑल हर्ड अबाउट दैट एक्ट्रेस मॉडल. Her name was Gitanjali Nagpal. She was also on the ramp with Aishwarya or Sushmita. She was a designer turned model, and then because of her dependence, chemical dependence, which went haywire, वो zero हो गई, बहुत बुरी हालत में थी. And we've also heard of a person and फोटोग्राफर कॉल्ड जगदीश माली, उनकी बेटी एक एक्ट्रेस थी, एंड जगदीश माली की फोटोग्राफ्स काफी प्रसिद्ध थी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को फोटोग्राफ किया है. बट इन द एंड ही डाइड अनोनिमस, मतलब वो आधे कपड़ों में पाए गए. देन सलमान खान एंड सम पीपल, उन्होंने उनकी हेल्प करी उनको एंड में, लेकिन वो गुमशुदा काइंड्स थे, लेकिन वो मर गए. मतलब हाउ कैन दैट हैपन? हमारे बुजुर्गों के साथ ऐसा कैसे हो गया कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जीरो हो गया और वो हाफ कपड़ों में कहीं सड़कों पे पाया गया, and then some actors had to take care of him and settle things, you know. So why does this happen? All these strange things happen. So I just want to throw in some thoughts to you. लेकिन जितने भी rich लोग हैं, what are their milestones? I mean, when I look at a milestone, I mean, when I was in the corporate world, जब मैं corporate world में थी, मेरे milestone कहते हैं 30 लाख रुपए हर साल चाहिए मुझे अपनी बेटियों को लंदन में पढ़ाना है. I want to educate them in London. And my salary is this much. I have to save every penny so that I can have 30 lakhs per month, per year, so that I can send my daughters to London to study in so-and-so college. I mean, I was under such a pressure. That was my
kind of milestone. I didn't want to be rich. I wanted to have enough so that my daughters can have an all-rounded education. मैं चाहती थी कि उनकी अच्छी education हो. But thank God, God gave them an all-round education. They are real women of steel today. Far too steely than what we think. And I am grateful to God for that because मैं उनको बहुत strong बनाना चाहती थी. That was my goal. So that goal was fulfilled. Then कुछ लोग famous होने चाहते. मेरे बचपन का goal था. जब मैं बहुत ही छोटी थी, मैं सारी दुनिया में फेमस हूँ, सबके आशिमा आशिमा मेरा नाम जाने, मेरे से ऑटोग्राफ ले. हमारे पास तब छोटी सी ऑटोग्राफ बुक हुआ करती थी, हमारे पास स्लैम बुक्स एंड ऑल नहीं थी, तो तब वो गोल था. टुडे आई डोंट वांट टू बी फेमस. पीपल टेल मी लास्ट ईयर, प्लीज मैम आप एक दफा ना ऑनलाइन आ जाओ, आप फेसबुक पे आ जाओ, आप यूट्यूब. नहीं, मुझे नहीं चाहिए. आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट. मैं यहाँ पर आकर के तुमको एनकरेज कर दूंगी, क्लासरूम में पढ़ा दूंगी, आई गो टू अ लेक्चरर, बट आई डोंट वांट टू बी ऑनलाइन और ऑन सोशल मीडिया. आई डोंट. दैट्स नॉट हु आई एम. टुडे हियर आई एम. I mean, but I don't have a desire to be famous. Respect. A lot of people have the goal that respect होना चाहिए. कुछ को होता है कि मुझे knowledge होनी चाहिए, मेरे को ये भी पता होना चाहिए. No, I have to know. So we all go through those phases. ये भी पता नहीं, ये we need to know because somebody will ask me in a meeting कि वो, so we should be the one to answer them and stupefy them, and they'll say, wow, such an intelligent person, they know everything. So वो भी phase आया कि ये भी पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, like those milestones. And then some have influential. मेरे connections है यार, काम बोलो and I'll do this for you. I know this and I know that, and I've gone through that phase also. So ये सारे milestones अलग-अलग life में. Today I don't care. I mean, if you'll ask me what is the latest news, except wear a mask and be हाथ को धो के साफ करते रहो. मेरे हाथ भी सूख गए, मुझे कितना सारा क्रीम लगाना पड़ता है ये मैं जानती हूँ. I don't care. जहां तक कोविड की बात है, God has sorted it out. And other things, yes, I pray for my country and I get updates. My daughter gives me, Mummy, this is the latest and that is the latest and this is it. So I am no more GK madness, the frenzy, GK सब आना चाहिए. So we all have different milestones and mostly लोगों का होता है कि ये सब चीजें. But why do we want to be rich or better? ये क्यों चाहिए हमें? चलो ठीक हो गया, but उसके बाद how come हम उस milestone को maintain नहीं कर पाते? Let's say somebody is very knowledgeable. वो milestone maintain क्यों नहीं हो पाता है? हम लोग गिर क्यों जाते हैं? Why do we come down? एक बाइबल में एक मेंशन है, ल्यूक चैप्टर 15 में एक बहुत रिच आदमी है, उसके दो बेटे, रिच आदमी के बेटे भी तो रिच हुए ना, they were very very wealthy, and we hear that one of the guys said, hey, I am leaving my father and my family, no more, enough of these guys. I'm going to go to a distant world, I'm going to travel, and I'm going to take half my wealth and I'm going to have pleasure. So he was pleasure driven. He was thinking of the future. इनका पिन छूटेगा, these people ये मेरे से दूर हो जाएंगे, I don't want to see their faces. बहुत परेशान कर दिया मेरे बड़े भाई ने और मेरी पापा ने, और मैं अपने जाकर के अपना नाम कमाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा. And he also said, मैं इस आधी संपत्ति लेके जाऊंगा, ये मेरा है, मैं लूंगा, मेरे बाप का सब कुछ मेरा है, आधा तो मुझे मिलना चाहिए, and मैं इसे अपने पार्टीज करूंगा. So he goes off with a great pomp and show, और घमंड से आ नहीं रहा मैं तेरे पास वापस, सारा पैसा लूंगा और पार्टी करूंगा. और उसके सारे फ्रेंड्स भी उसके साथ चल पड़े, and they were on a eternal, maybe they were gone to LA, no, what is it, that place called, Vegas, Las Vegas. They're in Vegas और मस्ती कर रहे हैं और खूब पैसा उड़ाया उन्होंने वहां पर. फ्यूचर तो आंखों में जो लेकर के गए थे, गॉड ने कहा भैया ठीक है तुम्हारा फ्यूचर. और उसके बाद हम कहानी सुनते, कुछ वर्सेस के बाद वो पूरा लुट गया, बर्बाद हो गया, ही इज फिनिश्ड. He has actually come to rags. कपड़े नहीं है उसके पास, कोई जॉब नहीं, सारा पैसा खत्म हो चुका, पैसा खत्म, गेम, वो क्या कहते थे पुराने जमाने में कहावत, पैसा हजम खेल खत्म, समथिंग लाइक दैट. हाँ, पैसा खेल खत्म पैसा हजम. हाँ, ओके. सो ये कहावत थी, खेल खत्म पैसा हजम, और डिवाइस में पैसा, उसके केस में पैसा खत्म हुआ, खेल खत्म हो गया. वो वहां पर पहुंच गया जहां पे पिग्स रहते थे, पिग्स के स्टाई में, खाना नहीं है उसके पास खाने के लिए. अब को उसको क्या खाना पड़ रहा है, उसको सुअर की फली खानी पड़ रही, जो पी पॉड सुअर खाता था वो. ये अ रिच मैन, इट्स लाइक सम वेरी वेरी बिग शॉट्स, richest person of the country's son eating pig pods and no clothes. He has to kind of do with a langot or something like that.
ये है real story from riches to rags. How did that happen? How come somebody who's so rich became poor is the question that I'm asking you right now. There are few announcements, I guess, so I'll just check. Okay, so and this story is about restoration actually. अंत में ये लड़का अपने पापा के साथ जब रिस्टोर होता है, पश्चाताप करता है, अपने सेंसेस में आता है, he comes down from his high horses, he goes back to his father, and you know what? The father is waiting all those years. So that's not where I'm going. How to come back to the father? How to maintain? अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए, you are today a manager, इतना क्या हो गया कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए? Why? Why not to go higher? Why not to get a promotion? It requires character. अगर आपको नौकरी से निकाला गया या कुछ हुआ, कुछ तो हुआ, and you're part of that story, you did not play your part in it properly. God ने जो आपको promotion दिया, आपको उसमें से निकाल दिया गया. So all these things require character. तो यहाँ पर मैं एक ब्रदर की रियल टेस्टिमनी लेना चाहूंगी, very much like a prodigal son. I mean, I'm not trying to state who is, but just a real story, and it is for our learning. मेरे पास आए, हम आपके साथ रहना है, okay, welcome. God ने कहा go ahead. पर उसके बाद there was a breakdown, and the breakdown was very ugly. It was a very ugly breakdown. हम लोग जब बात करने गए, because बाइबल कहती है कि बात करो, हम बात करने गए तो इतना ज्यादा animosity था, it was so negative that we had to say okay, let's go. हम लोग आ गए. उसके बाद हम लोग frustrated feel होते हैं, because end of day we are elder people. I mean, बच्चे तो नहीं है तो बुरा तो लगता है, you know. We felt shaken up. We didn't know what to do. हमने उस वक्त थोड़ा सा डिस्कस किया, दिल को थोड़ी सी तसल्ली दी, उनके लिए प्रेयर करी, वहीं छोड़ दिया. उसके बाद never ever did we gossip. हम चले आए, पर अजीब लगता था कि ऐसे हो कैसे सकता है, मतलब. And I kept asking God, where have we made a mistake? अगर कुछ मिस्टेक है तो बता दो प्लीज, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं. Anyway, so we dismissed that whole chapter, but we kept on praying for that family. At least I was and my friend was. So हम लोग प्रेयर करते रहे. Then one fine day we got to talk. पता चला कि कुछ इवेंट है, तो हम लोग वहां पर गए as people of God, bless करके आए. और उसके बाद भाई का कॉल आया और उन्होंने कहा मुझे आपसे मिलना है. हम 3 घंटे बैठे साथ में, 3 hours, और 3 घंटे उन्होंने मुझसे ये बोला, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं, क्योंकि जब मैंने ऐसा बिहेवियर किया, मैं गलत था, और जब मैंने ऐसा बिहेवियर किया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ. आई बिकेम जीरो. और जब मैंने गॉड से कहा, गॉड मैं जीरो क्यों हो गया, गॉड ने कहा पेपर निकाल, एक कॉपी निकाल और सबके नाम लिख, और उसमें हमारे भी नाम थे. तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे, लेकिन मैंने कहा फिर भी मुझसे कुछ तो गलती हुई होगी ना, प्लीज मुझे बताओ, मैं माफी मांगने. उन्होंने कहा नहीं, आपकी गलती थी नहीं, मेरी गलती थी. ये वर्ड ये सब मैंने गलत किया, बिकॉज दिस पर्सन हैड सम अ ग्रेट प्रॉमिस. जैसे अनॉइंटिंग होती है ना, लेट्स से Daniel had the anointing for prophecy. So this gentleman had an anointing for business, and God connected him for that with us. Sab kuch khatam, zero. It was zero. And this is a recent history, like a recent maybe 2020 situation I'm telling you about. Rags to riches. Instead of going higher, the person came down because of certain breakdowns. And what in the end we will call it? Character. So what I want to bring to your notice is, भजन पहला कुरिन्थियों 36 कहता है, 15 का 36 कहता है, हम एक बीज की तरह हैं जो बोया जाता है. जब तक वो बीज मरता नहीं है, वो नया पेड़ नहीं लेके आता. और जब मैं इन भाई से बात करी थी, गॉड शोड मी एन इमेजरी. उन्होंने दिखाया एक बीज जो अंधेरे में दबा. आपने जर्मिनेशन का प्रोजेक्ट किया, हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट इन स्कूल? और यहाँ पे हमारी बेटी बैठी, वो सारा दिन लहसन उगाती रहती, लहसन, यू नो, शी लव्स ग्रोइंग लहसन, and she wants to grow more of the things. And हम पहले वो पेड़, हम सीड को मिट्टी के अंदर डालते हैं. But you know what? अगर हम इस बच्चे को भेजते कि जाओ गमले को 24 घंटे देखो कैसे बाहर निकल रहे, she'll keep sitting and watching seed निकले. It will not, because there is something happening inside we don't know. जब हमारे quiet times होते हैं, हमारे insignificant times होते हैं, हमारे times of
nothing happening and not seeing a progress. It's quiet. कल हम वो गाना करते, even when I don't see that you're working, you never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't see that you're working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. So we were just hung over this song, and so this came out. So sometimes it feels God is not working. Sometimes the miracle is not instant, but God is working. In these times, जब हम लोग गलत कर रहे होते हैं, God has to break us and make us sprout into a tree. That sprouting into a tree will not happen till we die. And how do we die? मिट्टी के अंदर, it's a grave. जब हम क्रिश्चियंस को ग्रेव के अंदर डाला जाता है, इट्स ओवर, राइट? वी से इट्स फिनिश्ड, इट्स ओवर. हम मिट्टी डाल के आते हैं, अर्थ टू अर्थ, यू नो, वी जस्ट, हम जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, वी वर ऑल देयर, हम सबके हाथ में मिट्टी थी, और जब मम्मी के कॉफिन नीचे किया गया, हम सबने मिट्टी हाथ में, क्राइंग, एंड ऑफ कोर्स इट्स सो पेनफुल टू सी योर मदर्स कॉफिन गो डाउन एंड देयर, एंड वी वर पुटिंग मिट्टी, यू नो, टू अर्थ शी रिटर्न्स. बट according to the Bible, she is gone there to be resurrected with Christ. Jesus is already resurrected and she will also resurrect with Jesus Christ when he comes back. जब Jesus वापस आएंगे, मम्मी भी resurrect होंगे, और हम, अगर हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी resurrect होंगे. But here I'm bringing your thought to something different. अगर हम riches से rag आ गए, हमारी life में change आया है, we need to wake up. It's a time to wake up. जैसे मैंने आपको ये ब्रदर की टेस्टिमनी बताई, ये 3 महीने 5 महीने गॉड ने उनको तोड़ा, खत्म किया, पैसे नहीं है, I mean all kinds of challenges, but he came on his knees to worship God, to pray, God तू मुझे बता मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या किया. And then he had the courage. अभी इतने बड़े इंसान हैं और मैं उनसे कुछ साल बड़ी हूँ, वो मेरे पास आएंगे और मुझसे माफी मांगेंगे, उनको भी तो awkward लगेगा. After all, he's not a small man, he's a big shot. I mean he big shot means बड़े हैं, जानते हैं चीजों को, और उन्होंने आके कहा मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मैं अपने आप को, आप मुझे डांट सकती. पहले तो मैंने सोचा मैं डांट सकती हूँ, सो आई वाज लाइक थिंकिंग हाउ कम, बट देन ही सेड मैं सरेंडर करने, आप मुझे सब कुछ बोल सकती हैं, एंड आई एम गिविंग यू अथॉरिटी, एंड आपको जो बोलना है बोलिए. सो नाउ आई कैन सी द शिफ्ट हैपनिंग. दैट्स व्हाट इज डाइंग. एक मरा हुआ इंसान जब जिंदा होता है, तब वो एक जिंदगी की बातें करता है, और जिंदगी की बातें पश्चाताप से आती हैं, सरेंडर से आती हैं, और गॉड के सामने हम सबको सरेंडर करना पड़ता है. वी आर दैट सीड, हमें मरना पड़ता है, और जब सीड मरता है, दैट्स अ टाइम ऑफ ब्रेकिंग. समथिंग हैपेंस इन द, एंड वी कांट सी इट. वी डिडंट नो वेयर ही इज, बट वी वर प्रेइंग, बट देयर वाज समथिंग हैपनिंग. गॉड वाज वर्किंग इन हिज लाइफ, एंड गॉड वर्क्स. जब हम टूटते हैं, कितने सारे लोग हैं, भूमि पेडनेकर, उन्होंने अपनी एक मूवी के लिए बहुत सारा वेट बढ़ाया, फिर 90 किलो बढ़ाया, फिर उसको बिल्कुल हटाया 4 मंथ्स में. तो हमें तो एंड प्रोडक्ट देखने को मिला जब वो पतली हो गई. हमें उनका लेबर नहीं पता है. अ लॉट ऑफ पीपल हु डू न्यू ईयर रेजोल्यूशन, पतला होना है, एंड पहले दिन ही 1 जनवरी को कहते हैं हम कुछ भी मीठा नहीं खाएंगे. फिर लोग कहते हैं अरे 1 जनवरी है, मीठा नहीं खाएगा तो कौन से, आज खा ले, पूरे साल मत खाना. यू आर राइट. एंड देन दे स्टार्ट विद वन, then somebody else, और मेरा नहीं खाएगा, उसका खा लियो, वो स्पेशल है तेरे लिए. There are some people who are so good in emotional blackmail, उनको PhD मिलनी चाहिए, you know. So they will just go around you and say things, and you what, I mean, you know, you're helpless. So that's what happens. So and मिठाई खिलाने में, और कुछ लोग ड्रिंक कराने में बड़े एक्सपर्ट्स हैं. So this is what happens. But actually हम इसलिए फेल होते हैं because हम खुद ही रिजॉल्व नहीं किया हमने. इफ वी हैव रिजॉल्व्ड एंड रिजॉल्व्ड, हमें खाना ही नहीं है, हिला के दिखा दो ऐसे इंसान को जो कह दिया नहीं खा रहे. सो बैक टू आवर मैसेज. जब तक पहला कुरिन्थियों 15 का 36, जब तक कुछ जो बोया जाता है वो मरे ना, तो वो जिलाया नहीं सकता. वी हैव टू डाई टू आवर ओल्ड सेल्फ. हमें जब तक इस माइंडसेट को और इन सब चीजों को डाई नहीं करेंगे, पॉल ने कहा वर्स 31 में, पहला कुरिन्थियों 15 में, that I die daily, I face death daily, मैं प्रतिदिन मरता हूं. तो कहेंगे अरे तुम तो जिंदा देख रहे. नो, he dies to all these worldly things. I die to this, I die to that. आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे distractions है to die to, but
we have to die and we have to create a new character. I'm just speaking about character. And what does it mean by character? We have to die to ourselves daily. ये 4 चीजें हैं, यही मुझे गिराती हैं. No, and you have to take that into perspective. This thing where I'm talking to this person and it's bringing me a negative vibe, or maybe I'm going to this office, वहां पर ये तरह का काम है, ये काम मेरे वैल्यूज के अगेंस्ट है, मुझे नहीं करना है. So we have to die every day in our mind and say okay. So then हमें अपने आप को we also have to think, you know, one very interesting thing I learned. कभी कभी रिलैक्स होकर के अपना फ्यूनरल इमेजिन करा करिए. मैंने करा है. So what do you want? मतलब हमारे चर्चेस में फ्यूनरल कैसे होता है कि डेड बॉडी कॉफिन में चर्च में लाई जाती है, फिर मैसेजेस होते हैं, हमारे याद में 2-3 बातें होती हैं कि ये इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने बुरा किया. ऑफ कोर्स उस दिन सारे लोग अच्छा बोल रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग साइड में अच्छा हुआ, खत्म हो गया, बड़ा तंग कर रखा था इस बुढ़िया ने मुझे. You know, they can say things like that. Now, if you will imagine your funeral and then you see that people are taking a round around you and what are their feelings, you will recognize that आपने कितने लोगों को दुख दिया है. So many people said, thank God ये चला गया. Oh my gosh, ये तो दिल जिंदगी पे दुनिया पे बोझ कम हो गया. You know, of course, funeral में कोई नहीं बोलेगा. They will always say such things that even the murda will get up and say, मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं था. And these people are praising me for things I've not done. I'm just joking. So just on the lighter vein, you know, sometimes you can laugh a bit. So this is what happens. Imagine that. And जो चीजों को आपने बहुत कस के पकड़ रखा है, my job, my cell phone, some high series, my car, my career, my this thing, my jewelry, my beauty, everything will go. Funeral होगा. आपके यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है, वो होगा डेफिनेटली. अगर आपका नाम सो एंड सो है, मे बी आपका नाम क्षितिज है. आई बिलीव देयर इज नो क्षितिज ऑनलाइन टुडे. आपका नाम क्षितिज है. People will say some things for you, yet you know you have missed it somewhere. Let go of those things जो आप पकड़ के बैठे हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है. Start valuing. ये फोन बड़ा प्यारा है, आई लव इट सो मच, बट अगर ये चोरी हो गया तो क्या होगा? नो प्रॉब्लम, छोटू ले लेंगे, छोटू फोन ले लेंगे, उससे देखते ना हाउ विल इट फील. ठीक है, नहीं बात कर पाएंगे, नहीं कुछ दिन के लिए नहीं करेंगे. मे बी योर कार, यू हैव अ ब्यूटिफुल कार, आई मीन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग एंड आई नो व्हाट आई एम सेइंग, एंड इट डजंट वर्क, नो प्रॉब्लम, छोटी कार ले लेंगे, क्या फर्क. कैन यू शिफ्ट दोस थिंग्स? यू आर सो हंग अप एंड स्टक अप विद मेरा बिजनेस ये, यू नो, यू आर फॉरएवर पैंटिंग. व्हाट अगर ये बिजनेस नहीं चलेगा? कितने सारे बिजनेस और शॉप्स बंद हो गए. फ्रेंड्स, ये मेरा दोस्त है, इससे कोई बात नहीं कर सकता, या इससे कोई मतलब यू नो, एंड मेरे को इनके सारे दोस्तों को अपना बनाना है, ऐसा यू नो, लाइक ऑल दोस थिंग्स. मेरी मैरिज बस पति और मैं, वो और मैं और कोई नहीं. That person will also go away one day. So we have to get that perspective and then live in such a way कि जब आपकी डेथ हो, आपकी ऐसी बातें बाहर ना निकले जिससे कि आपके फैमिली को शर्मिंदगी उठानी पड़े. We are going to die. हमारी बॉडी प्लांट की जाएगी जमीन में. It will be waiting. If we are in Christ, it will be waiting for resurrection जब जीसस दोबारा वापस आएंगे. So do things that you will be not ashamed कि वो खुलेंगी भी, तो people will not say. And then live so much right that एक टाइम पे आपको फूलन देवी कहा जाता था, लेकिन आज की फूलन देवी बहुत पुराने जमाने में एक डिकॉइट थी. लेटर ऑन शी टर्न्ड एन एमएलए, बट शी इज नोन फॉर गिविंग डर्टी वर्ड्स. बहुत गंदा बोलती थी, लेकिन लेटर ऑन वो अच्छा इंसान बन जाती. शी हैज अ ट्रांसफॉर्मेशन. फिर लोग आपके अच्छे लाइफ को याद रखेंगे, बुरे को भूल जाएंगे. सो एम फॉर दैट. एंड देन हम सबको प्रिपेयर करना है कि हम अपने घर के मैटर्स को हमेशा रेडी रखें. इन केस वी डाई, क्या मेरे घर के मैटर सारे सेट इन ऑर्डर हैं? हैव द डेथ मेंटालिटी. आई मीन, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डाई, बट बी रेडी इन योर माइंड. लिव दैट लाइफस्टाइल, देन यू विल नॉट बी अटैच्ड. ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो. Act like a seed. You've been sown in a situation. The Bible says in chapter 15 again, bad company spoils good character. You want good character? First of all, know that you're dispensable. जाना है. दूसरा, good character. Good character के लिए
आपको रिकॉग्नाइज करना है। प्रोवर्ब्स में सबसे पहले लिखा अपने मन को पहले साफ करो। प्रोवर्ब्स 4:22 says guard your heart, always protect your heart from what input you want inside it. इनर वर्क पहले करना पड़ता है हमें उसके लिए फॉर आवर कैरेक्टर। एंड आई वांट टू एंड दिस मैसेज विद वन लॉन्ग पैसेज व्हिच इज फाउंड इन Colossians chapter 3 verses 1 to 17, and I would keep reading it in Hindi and English. Let's just follow. It's the whole passage which I will read. I'll probably read in English. Nikita, आप उसको हिंदी में लिख दीजिए वहां पे. If then you who have been raised with Christ seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. हम और आप जो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर चेंज हो, तो कंटिन्यूअली जब भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हमें ये सोचना है क्या ये बात जीसस अप्रूव करते हैं। हमारा माइंड गॉड की तरफ मोटिवेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना प्रेयर पर बनाएंगे ये मुझे इससे तो शादी करनी है, गॉड आप अग्री करो, गॉड अग्री करो, गॉड मानो गॉड। नो, first you find out, ask God what kind of life partner should I have, wait for that person, and the person appears. Ask God, is this my life partner? Don't make God agree, because it is going to be disastrous for you. Then set your minds on things that are above and not things on the earth. हमें अपना दिल दुनिया की चीजों पे नहीं लगाना है. For you have died. एक तरीके से हम मर चुके। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी, तो हम इस दुनिया के लिए मर चुके हैं. We have a new life. Jesus is living in us. So we are dead for this world, but living in Christ. Are you getting me? Then when Christ, who is your life, appears, then you will appear with him. Of course, we'll be resurrected. Put to death, therefore, what is earthly. दुनिया की क्या चीजें हैं? लालच, गंदी बातें, sexual immorality, impurity, passion, evil desires, covetousness, idolatry, and many other things. और इन सब चीजों से गॉड को गुस्सा आता है, वो भड़क जाते हैं. So why do we want to have these things? Let's work on a good character. Let's walk in purity and holiness. कुछ लोग कहेंगे मुझसे होता नहीं है. No problem. You tell God, मुझसे नहीं होता. I don't understand these things. Help me, God. Holy Spirit will help you. We have the help of the Holy Spirit. Then Paul is saying, in these I also once walked and was living in them, but now you must put them all away. Anger, wrath, गुस्सा करना, wrath, malice, slander, एक दूसरे से झूठ, just a minute, अर्थात क्रोध, रोध, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो. मैंने भी सुना कि कोई बहुत गालियां दे रहा था किसी चीज के लिए. गाली कैसे दे सकते हैं हम? We are graceful people, right? We can't. So let's look at that. Obscene talk from your mouth. Do not lie to one another. इतना झूठ बोलते हैं. That lady came to me और वो मुझे झूठ बोल रही है. मैं तो किसी को नहीं बताने जा रही उनकी बात. And why? झूठ बोलने की जरूरत क्या है? अगर आपको लगता है कि मैं ये वाली बात नहीं बता तो मत बताओ, चुप रहो, अपनी बात को अपने तक रखो, लेकिन झूठ तो मत बोलो. डू नॉट फैब्रिकेट. दे आर ऑल गोइंग टू कम. एक फांसी के फंदे की तरह आके आपको लटका देगी वो बात. स्टॉप लाइंग. पता चल जाती हैं बातें. पीपल विल नो. गॉड विल एक्सपोज. सो स्टॉप लाइंग. Do not lie to one another, seeing that you have put off your old self and its practice. हमें अपने पुराने सेल्फ को हटाना है और उसकी जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी उनको खत्म करना है. And then you have to be renewed in knowledge. Which knowledge? दुनिया की knowledge. दुनिया की बहुत knowledge है, हर मिनट WhatsApp पे और सारे मीडिया पे आती रहती है. Renewed in God's knowledge. जब God की knowledge powerfully हमारे अंदर खड़ी हो जाएगी, nobody can shift us from what is ours and where we need to walk. आगे लिखा है, after the image of the creator. Here there is not Greek, not Jew, not circumcised, not slave, not free, but Christ and all in one. God कह रहे सारे लोग मेरे सामने बराबर हैं. अमीर, गरीब, Jew, Gentile, लड़की, लड़का, God की नजरों में सब बराबर हैं. एक लड़की लड़के से कम नहीं है, क्योंकि जो जीसस एक लड़की के अंदर है वही जीसस एक लड़के के अंदर है. जो जीसस गरीब के अंदर है वही जीसस अमीर के अंदर है. ऑफ कोर्स फंक्शंस अलग हैं. जब शादी होती है, परमेश्वर चाहते कि पति घर का हेड हो. दैट्स अ फंक्शनल डिफरेंस गॉड हैज मेड. हाँ, नौकर भी होते हैं, हाँ, मालिक भी होते हैं, ये डिफरेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए. But then put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another. And if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you must forgive.
Of course, there is a situation where ये हम बार बार करते हैं, and I'll just read this in Hang. इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, गॉड के प्रिय, से I am God's beloved. बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के लिए अपराध क्षमा कर लो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी करो. जीसस ने सिखाया माफ करना. फादर forgive them because they do not know what they do against. I mean, Father forgive as they do not know what they are doing. ये उन्होंने क्रॉस पे बोला था. उन्होंने अपने चेलों को भी सिखाया था, Father forgive my sins as I forgive them. So we have to forgive people. Jesus ने सिखाया माफ करना है. ये एक गुड कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा पोर्शन. आप इस पे मेडिटेट करिए, what you need to do and not need to do. Then he says, above all, put on love, which binds everything together in perfect harmony. जब भी कभी दिमाग खराब हो रहा है and people are really troubling you, just put on love and God in love will direct you आगे क्या करना है. And let the peace of God rule in your heart. The moment we start practicing these things, suddenly peace of God will visit you. It will be an amazing peace. आपने दुनिया में कभी ऐसी peace महसूस नहीं करी होगी. It will dawn on you. And this peace will be your guide and your shepherd, because God gives peace. The Holy Spirit is peace. Jesus is called the Prince of Peace. यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है. And then we go forward. Indeed, you were called to one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thanksgiving in your heart. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father. तो हमें क्या करना है? वर्ड ऑफ गॉड को समझना है, एक दूसरे को सिखाना है, उसको डिस्कस करना है, उस पर चलना है, उसमें से गॉड हमें डायरेक्ट करेंगे, यहाँ जाओ मत जाओ. गॉड आपको सब कुछ वर्ड ऑफ गॉड से डायरेक्ट करेंगे, और एक दूसरे को आपको ब्लेस करना है, और एक दूसरे को गाने गाने थैंकफुल करना है, और आपको सब कुछ यीशु मसीह के नाम से करना है. सो इट्स सो सिंपल. दिस इज द की टू गुड कैरेक्टर. एंड एक खुदा के दास हैं, उनका नाम है D.L. Moody. He says, if you take care of character, he said, if I take care of my character, my reputation will take care of me, take care of itself. कितने लोग एक अच्छा reputation बनाना चाहते हैं? Don't try hard. बड़ा मुश्किल है. You can't go and convince people I'm good. It doesn't work. You continue to show your character the same again and again and again. People will note it. और लोग, आपको पता है, लेट्स से ग्रुप ऑफ चोर है, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल और मैं इसे कई दफा देती है, सो आई एम जस्ट गिविंग इट अगेन. लेट्स से 12 लोगों का ग्रुप है. आजकल बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से चोरियां होती हैं, एंड लेट्स से उन्होंने बहुत सारा सामान चुराया. चोर धोखेबाज लोग भी ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जिसपे वो भरोसा कर सके, भरोसा कि वो अपना सारा लूट कहाँ रखेंगे. वो एक बंदे को इंट्रस्ट करेंगे, दूसरे सामान हम आते हैं और चोरी करके लाते हैं. इवन चोर ढूंढ रहे हैं मतलब भरोसेमंद इंसान के लिए, पर्सन ऑफ कैरेक्टर. आर यू लुकिंग एट दी ऑड थिंग? इस दुनिया में सबसे कीमती रिसोर्स पानी नहीं है, अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर. आप और मैं सब अपने बिजनेस के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए पर्सन ऑफ कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं. बट यू नो व्हाट, that will only happen, you will find them when you become the person of character, because like attracts like. Are you the person of character? Can you be trusted? Can you be trusted for everything? So this is what I just want to bring to your notice. And one more thing, चोर कभी भी अपने बच्चों को चोर नहीं बनाना चाहता. मैंने नहीं देखा कि चोर कह रहा है मैं इतना खराब हूं, मैंने गंदे काम किए, व्यभिचार किए, मेरे बच्चे भी यही सब करे, बचपन से के बच्चों चोरी करनी है. You know, nobody does that. और चोर भी जब सुबह सो के उठता है, उसका फर्स्ट थॉट होता है, वो ये नहीं कहता आज मुझे गंदे काम करने, आज मुझे चोरियां करनी, आज मुझे लोगों को परेशान करना है, दुख. उसका फर्स्ट थॉट ये नहीं होता है. So he has made himself like that. We don't need to have bad character. God हमें अभी भी बदल सकते हैं, हम आज भी तौबा कर सकते हैं, रिपेंट कर सकते हैं. God अभी तक मेरे को एक न्यू डेफिनेशन मिली है ह्यूमिलिटी की. Are we humble? ह्यूमिलिटी की नई डेफिनेशन जो मुझे मिली है, नॉट अ न्यू डेफिनेशन बट अ न्यू अंडरस्टैंडिंग. जो लोग गॉड की बातों को ओबे करके उस पे चलते, those people who obey God and walk according to God are humble. Those people who reject God's advice and all the wonderful he's saying because they need logic or some tangible thing or something or maybe nothing, but they don't, नहीं मैं नहीं कर रहा, I can't, मुझे नहीं करना. Those people who do not obey God because they don't choose not to obey God for some reason or the other, they are not humble. That's a new definition.
So are we trying to work on our character? हम एक प्रोडक्ट है, हम एक बीज है, हमें मरना और टूटना जरूरी है. अच्छा है कि गॉड हमें जमीन में घुसा दे और हम वहां पर हमारे अंदर काम चले. हमें फेमस अभी नहीं होना है, हम अपने आप फेमस हो जाएंगे. अगर हमारे अंदर कैरेक्टर होगा, पीपल विल बी लुकिंग फॉर अस. वो इंसान हम उस पर भरोसा कर सकते. यू नो, समटाइम्स पीपल कम एंड टेल मी सच ऑड थिंग्स एंड आई से गॉड, ये बात मेरे अंदर से कभी उनके बारे में ना निकले. एंड देन आई टेल गॉड, निकाल दो. द अदर डे समबडी सेड, आंटी आपको याद है वो ऐसा ऐसा आपने विजन देखा था? कब देखा था? मैं भूल गई. अच्छा आंटी तो ऐसा है, यू नो. सो forget past and all the things of people. Become a better person. Character. I request you, become a person of character. आपका purpose आपकी life में पूरा हो जाएगा. Die to self. Die. Are you ready? Are you ready to die to self? I would like you to sit down alone and plan your funeral. I know you'll say कैसी बातें की जा रही हैं. Detach yourself from things. Today I don't feel an attachment to anything in my life. बस मेरे को ये कि मेरी जो बेटियों का मिशन है वो पूरा हो जाए. जिन लोगों के लिए, ऑफ कोर्स मेरे चर्च के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं पूरे मन से प्रेयर करती हूँ, बट मेरी लाइफ के लिए whatever I do is for the church or my daughters, you know. So that's it. So let's just bow our heads in prayer. My Father and my God, I thank you for the people who are listening to this message. My God and my Father, I pray, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो हमारे लिए एक फंदा है, it stops us from going to the next level. Lord, we don't want to be those stories who reach the level and down from there because of certain bad habits that we have. परमेश्वर, हम नहीं चाहते कि लोग हमारे पर रिसर्च करें और कहें कि ये वो लोग हैं जो इतने अच्छे मकाम पे आए थे and now they are from riches to rags. ये लोग तो zero हो गए, like the prodigal son. Lord, you restored the prodigal son to his father. Lord, I pray, जो लोग दूर चले गए हैं और इस वक्त गंदगी में है prodigal son की तरह, and they are messed up and confused, I just pray, Lord, that they will hear this message and come back to their senses in Jesus' name and recognize ये क्या करा है मैंने. It's wrong. I don't need to do such things in my life. Lord, please have mercy and give them another opportunity to get back to you. Lord, have mercy. Lord, अगर आप कांता की बहन बेटे को जेल से निकाल सके जबकि वो खुद एक गैंगस्टर है, तो परमेश्वर आप ये भी कर सकते हैं. आप अपने बच्चों को जो आपके पास एक दिन आए थे, खुशी से आए थे, अपनी जिंदगी को बदला था, वो इन सब गंदी चीजों को छोड़ करके, उस पिग के पेन में से निकल करके, सब कुछ छोड़ के, अपने काले गंदे कपड़े छोड़ करके उठेंगे और वापस आएंगे और कहेंगे, have mercy on me, God. Lord, I just pray that you will have mercy on all our families that have gone away from you. Lord, we cannot do a thing without you. The Bible says, without me you can do nothing, Lord, and we are trying so many things to do this and that. Lord, I just pray that people will recognize without you we can't do anything. God, let people be able to do something with your help. Let them invite you. Lord, इस वक्त क्या आपको लगता है कि आप गॉड के बगैर कुछ भी ढंग का नहीं कर पा रहे? Would you like to call Jesus into your heart so that Jesus is in your heart, ताकि आप वो सब कर सके, so that आपकी स्टोरी रैग से रिचेस हो और रिचेस से मोर रिचेस हो, नॉट मनी. आपका रैग से प्रमोशंस, अ बेटर लाइफ, और बेटर लाइफ से और भी बेटर लाइफ हो, ताकि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग हो. डू यू वांट दैट? डू यू वांट योर लाइफ टू हैव अ पर्पस? डू यू वांट टू हैव मोर मीनिंगफुल स्टेप्स इन योर लाइफ? प्रे विद मी. यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी कमजोरियां और गलतियां हैं, मुझे माफ कर दीजिए. जीसस क्राइस्ट, आई नो आई हैव गॉट मेनी वीकनेसेस एंड मिस्टेक्स इन माय लाइफ एंड आई एम ट्रूली सॉरी एंड आई रिपेंट ऑफ माय सिंस. I repent in front of you, God. I'm so sorry. मेरे सारे पापों को जीसस अपने लहू से धो दीजिए जो क्रॉस से बहा था. For my sins, Jesus, you died for me for my sins. Your only purpose was to die for my sins. So Lord Jesus, आपके लहू से मेरे सारे पाप धुल जाए right now. Oh Jesus, reconcile me and restore me to my Father God. परमेश्वर यीशु मसीह, मुझे मेरे पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर से reconcile कर दीजिए आज यीशु के नाम से. मेरे दिल में आ जाइए यीशु मसीह. Live inside of me. I believe you died for me on the cross. मैं मानता हूं कि आपने क्रूस पे मेरे लिए जान दी. I believe you were buried and you rose again from the dead. मैं विश्वास करता हूं कि आप मारे गए और आप फिर से तीसरे दिन जी उठे. And you are Lord. I believe, you are Lord. मैं बिलीव करता हूं कि आप प्रभु हैं. यीशु मसीह, मेरी जिंदगी को अपने लहू में ढांकिए.
मुझे अपने लहू में ढांकिए और मेरी जिंदगी की हिफाजत आप कीजिए, मेरी मदद कीजिए कि मैं कैरेक्टर में चल पाऊं. Let there be an inner work. In my eyes, my character is perfect, but I don't want to see through my eyes. मेरी आंखों में मेरा कैरेक्टर परफेक्ट है, मुझे अपनी आंखों से नहीं देखना, मुझे अपनी आंखों में अपने आप की वाहवाह नहीं करनी, but I want to see myself through your eyes. Lord, judge me. आज मुझे जज करिए, मेरे अंदर देखिए क्या गंदा है, जैसे सामिस ने कहा, check everything inside of me and bring it to the table, Lord. दिखाइए मुझे, expose me to me, मुझे दिखा दीजिए सब कुछ और मेरी मदद करिए, क्योंकि मैं नहीं कर सकती अपनी मदद. I can't help myself. Change me, God. Help me, God. Wash me, God, with the blood of Jesus and make me a different person. वो लोग मेरी जिंदगी में आए जो मेरी नेक्स्ट जर्नी में मेरा साथ देंगे. सारे गंदे लोगों को, because bad company destroys good character. Lord, सारे बुरे लोग मेरी लाइफ से चले जाएं. प्रभु मेरे इन्फ्लुएंस से निकल जाए, लेकिन जो लोगों को मेरे को हेल्प करना है या जो लोग मेरी ब्लेसिंग के लिए वो आ जाएं यीशु के नाम से. आमीन. लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके बच्चे अच्छे कैरेक्टर में खड़े हो पाएंगे यीशु के नाम से. आमीन. आई ब्लेस देम इन जीसस नेम. बी हील्ड इन जीसस नेम. लिव अ लाइफ ऑफ सक्सेस इन जीसस नेम. बी फ्रूटफुल. आपका बीज तोड़ा जाएगा, वो मरेगा अंदर अर्थ के, बिकॉज कैरेक्टर इज बीइंग डिफाइंड, बट यू विल बिकम अ ट्री. भजन संहिता 1 का वो पेड़ जो फलवंत है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, किसी भी सीजन में नहीं मुरझाते, और उसकी जड़ें इतनी गहरी है, जो इंटरनल इनसाइड रिवर से कनेक्टेड है, वो कभी सूखता नहीं है, और वो हर सीजन में फलवंत होता है. और मैं घोषणा करती हूँ, जितने लोगों का बीज छुपा हुआ है, आप काम करें. देर इन कॉफ, देर इन अ ग्रेव सिचुएशन, लॉर्ड, आप उनको एक बहुत बड़ा दरख्त बना रहे हैं, और उस दरख्त में आकर के बहुत सारे लोग शरण पाएंगे, शांति पाएंगे. परमेश्वर, ये सारे लोग जो सुन रहे हैं, लेट देम बी लाइक द ट्री ऑफ Psalm 1, बिकॉज दे मेडिटेट ऑन योर वर्ड डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. So I just want you to continue to pray, and I'm just going ahead. I just want to see if there are any prayer requests. Okay, I'll pray for you for your guidance. And no, so I don't have any prayer requests. So here comes the time when we go into benediction. Would you like to say the last prayer with me? And let's continue to recognize, हमें दुनिया का कोई लालच नहीं करना है. Everything will go away one day. And किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं रखना है. लेट इट गो. इट डजंट मैटर, टाइटल, फेम, रिस्पेक्ट, useless. Trust me, I'm much elder and all these things are useless. I mean, nothing works, you know. So okay, so I have not got any requests, so we just go on to the benediction part. आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है. And here is a beautiful slide. Be the plant, be the seed. Okay, we come to benediction, the last ब्लेसिंग. मेरे पीछे पीछे बोलेंगे. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानो युग रहे. आमीन. और इस वक्त एक दो प्रेयर रिक्वेस्ट में, जस्ट 1 or 2 प्रेयर्स. एक तो हमें प्रार्थना करनी है श्रुति के फादर की, उनका श्रुति के फादर की दूसरी आंख का भी ऑपरेशन है. पहली आंख का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है. हम लोग सब अग्री करते हैं, आप मेरे संग अग्री कर रहे हैं कि श्रुति के पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा, उनकी शुगर का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा यीशु के नाम से. कि श्रुति की मम्मी और प्रतिभा जी की सैलरी आ जाएगी. उन लोगों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली. इट्स वेरी टफ फॉर देम टू एग्जिस्ट राइट नाउ. हम लोग अग्री करते हैं अभिनव को जॉब मिलेगी. हम लोग ये मानते हैं. सिस्टर सोनल ने उदयपुर से ये मैसेज दिया है कि उनके फ्रेंड के पास जॉब नहीं है. परमेश्वर, आप सोनल के फ्रेंड को जॉब दे दीजिए यीशु के नाम से. उन भाई की मदद करिए. let him have the job in Jesus name. मोहित को एक डिसीजन लेना है, लॉर्ड, only you and nobody else. let the decision be 100%
by you and confirmed by you in multiple ways in Jesus' name. And he will not seek confirmation in a way that where he's already made up his mind that he's going to do things, but he will zero himself and detach and then make a decision. Lord, I believe he will do it in Jesus' name. ओ अंजना नाम है सिस्टर का, सोनल जी ने कहा, अंजना बेटे आप हिम्मत रखो, हमारे बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं थी बेटा, बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ऐसे चमत्कारों से जॉब दी उनको, और आई एम श्योर गॉड आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर खोलेंगे. आप हर्ष से भी बात करो, हर्ष आपकी हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ वो कहीं से आपके लिए निकाल लेगा. एंड टॉक टू द अदर अंजना ऑल्सो, जो अभी कोटा में है और वो आपकी मदद करेंगी, वो भी मतलब जानती थी. सो आई एम श्योर समथिंग विल वर्क आउट. सो इसी के साथ हमारा मोमेंट्स ऑफ ग्रेस का पीरियड खत्म होने जा रहा है. आई होप आपने कुछ सीखा. अगर आपने कुछ सीखा है, डू टेक्स्ट मी इफ यू वांट टू हियर समथिंग मोर और देयर इज एनी टेस्टिमनी, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. एंड हमारा ऑफिशियल नंबर है 9811218303. दैट्स माय फादर्स नंबर एंड आई वांट टू यूज इट फॉर प्रेयर एंड यूज इट फॉर टेस्टिमनी. मैं चाहती हूँ मेरे पापा का नंबर लंबा चले इस ब्लेसिंग के लिए. सो प्लीज शेयर विद अस. और ये टाइम है प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद कहने का. जय हिंद. प्रे फॉर योर कंट्री ऑल्सो. आमेन.